پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 6 مئی 2020 مطابق 12 رمضان المبارک کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اخبار کے صفحے اول کی شاہ سرخی ہے: 15,000 ہندوستانیوں کی مشروط وطن واپسی کا اعلان، جن کے پاس پیسے نہیں انہیں اپنے ملک لانے کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں۔ تفصیلی خبر کے مطابق بیرون ممالک میں پھنسے ہندوستانیوں کو لانے کے لیے پہلے مرحلے میں 64 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی، جن میں 12 ممالک سے 15,000 لوگوں کو واپس لایا جائے گا۔ شہری ہوا بازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج آن لائن ویبینار کے ذریعے بتایا کہ 7 مئی سے 13 مئی کے درمیان سرکاری طیارہ سروس کمپنی ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی 64 پروازیں چلائی جائیں گی۔ مسٹر پوری نے یہ بھی بتایا کہ ان پروازوں کا کرایہ اور وطن واپسی کے بعد 14 دن کے کوارنٹائن کا خرچ مسافر کو خود برداشت کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ابھی صرف انہی مسافروں کو لایا جائے گا جن میں کووڈ-19 کی علامت نہیں ہے اور جو اپنے خرچ پر آنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ حمید الحسن کی تحریر ابتدائے ماہ رمضان قسط 9 کو بھی اخبار نے بالائی صفحے پر شائع کیا ہے، جس میں مشہور دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی معنی خیز تشریح کی گئی ہے۔ دہلی میں شراب کے بعد پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی آسمان پر کی سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے: شہر دہلی میں لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کے بعد جو لوگ سرکاری یا پرائیویٹ دفاتر میں کام کرنے اپنی گاڑیوں سے جانا شروع کر چکے ہیں یا شروع کرنے والے ہیں، انہیں اس خبر سے جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ دہلی حکومت نے پٹرول ڈیزل ویٹ پر خاصا اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں۔ پٹرول پر جہاں ویٹ 27% سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا ہے، وہیں ڈیزل پر ویٹ 16.76% سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں ڈیزل کی قیمت بڑھ کر 69.29 روپے فی لیٹر اور پٹرول کی قیمت 71.26 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں فوری طور پر یعنی منگل سے نافذ ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ عالمی منڈی میں کچے تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ گراوٹ درج کی گئی ہے۔ ماسک، سینیٹائزر اور دواؤں کی کالا بازاری پر ہوگی کارروائی۔ ڈی ایم کے اس بیان کو بھی اودھ نامہ نے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق ڈی ایم ابھیشیک پرکاش نے بتایا کہ دواؤں، سرجیکل ماسک اور سینیٹائزرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں تاکہ عام لوگوں کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کارروائیوں کے علاوہ ضلع کے سبھی میڈیکل اسٹوروں پر زیادہ قیمت وصولی کے سلسلے میں مسلسل چھاپے ماری بھی کی جا رہی ہے۔ ایک کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پھٹکر دوا کاروباریوں کو بلا کر دوا بیچ رہے تھے، ان 4 فرموں کو موقع پر وجہ بطور نوٹس جاری کیا گیا اور دوا منڈی میں معائنے کے وقت آئے 10 کاروباریوں کے جاری پاس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ نے یہ اعتماد دلایا ہے کہ چھاپے ماری میں کسی بھی طرح کی گڑبڑی نہیں پائی گئی ہے۔ اخبار نے صفحے کے نصف اول حصے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے متعلق خبر نمایاں طور پر شائع کیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت ایڈوائزری کے مطابق صنعت و کاروباروں کو پورے تحفظاتی پروٹوکول کے ساتھ شروع کرایا جائے کے علاوہ خبر میں شائع باکس کو بھی اہمیت حاصل ہے، جس کی سرخی ماہ خبر ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ آج سے مشروط طور پر کھلے نجی دفاتر اور کھلیں گی چنندہ دکانیں۔ لاک ڈاؤن میں تمام راحت کے بعد انتظامیہ نے بدھ سے نجی دفاتر سمیت کالونیوں اور گلیوں میں سنگل دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ کچھ اور پابندیاں ہٹانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ الیکٹرک اور آٹو موبائل شاپ کے علاوہ اسٹیشنری اور دوسری ضروری سامانوں کی سنگل دکانیں ہی کھولی جا سکیں گی۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ دکانیں مین روڈوں پر نہیں ہوں گی اور کمپلیکس یا ملٹی پلیکس حصے میں نہیں ہوں گی۔ انتظامیہ نے کھانے پینے، ریسٹورنٹ یا کسی طرح کا اسپا اور سیلون نہیں کھولنے کے سخت احکامات دیے ہیں۔ خیال رہے کہ نجی دفتر کھولنے کے لیے پہلے انتظامیہ کو ایک حلف نامہ دینا ہوگا، ساتھ ہی ایک وقت میں صرف 33% ہی ملازمین کو دفتر میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ ان اہم خبروں کے علاوہ سابق رکن اسمبلی عظیم الحق پہلوان کا انتقال، ملک میں کورونا کا بڑھتا قہر، پچھلے 24 گھنٹے میں 195 ہلاکتیں، کورونا کے خلاف جنگ میں سب کی ذمہ داری ورنہ خطرہ بڑھنے کا امکان قوی، وزیر صحت، اور نوبل ایوارڈ یافتہ مشہور ماہر اقتصادیات پروفیسر ابھیجیت بنرجی کا مشورہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو نقد پیسے دینے کے بجائے عارضی راشن کارڈ بنا کر کھانا دینا چاہیے اور معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے اقتصادی پیکج کا اعلان ہونا چاہیے کو بھی اودھ نامہ نے جلی و خفی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ صفحے پر شائع اشتہارات میں پیشانی پر کاروان عسکری، مہندی ٹور اینڈ ٹریولز، جبکہ صفحے کے آخر میں الجواد ٹور اور فلیٹ فار رینٹ بھی موجود ہیں۔
عالمی صفحے کی جلی سرخی کے ساتھ شائع ہونے والی خبر ہے کورونا سے بچاؤ کے لیے اسرائیل کا حیاتیاتی اینٹی باڈی تیار کرنے کا دعویٰ۔ خبر کے مطابق اسرائیلی حکومت نے فروری میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ماہرین کورونا سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کے بالکل قریب ہیں اور چند ہی ہفتوں میں ویکسین کو تیار کر اس کی انسانوں پر آزمائش شروع کر دی جائے گی، مگر ایسی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی تھی۔ تاہم اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وبا کے علاج کے لیے حیاتیاتی اینٹی باڈیز تیار کر لی ہے۔ جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حیاتیاتی تحقیقی ادارے کی جانب سے تیار کی گئی اینٹی باڈیز مریض کے جسم کے اندر ہی وائرس کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری خبر چین کی ریاست سنکیانگ سے ہے۔ خبر کے مطابق وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود انہیں کسی بھی طرح اپنی مذہبی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چین کی کمیونسٹ حکومت نے اغور مسلمانوں کے مذہبی تشخص کے خاتمے کے لیے ایک وسیع مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت حراستی کیمپوں میں تقریباً 15 لاکھ اغور مسلمان کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں مساجد کو بند کر دیا گیا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید بھی نہیں رکھ سکتے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ اغور مسلمانوں کی تکلیف اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب دنیا کے مسلمان ان پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر چین پر دباؤ ڈالیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی سراسر ناانصافی کو روکا جا سکتا ہے۔ اٹلی میں لاکھوں مزدور کام پر واپس، اسپین میں ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت کی سرخی کے ساتھ شائع خبر کورونا وائرس کی وجہ سے چل رہے لاک ڈاؤن سے متعلق ہے، جس کی تفصیل کے مطابق اٹلی نے 4 مئی کو لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کرتے ہوئے تقریباً 45 لاکھ مزدوروں اور ملازمین کو کام پر واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح رہے کہ اٹلی میں 5 مئی تک کورونا وائرس سے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ 29,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی تھیں، لیکن حکومت حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے۔ وہیں اسپین نے بھی 4 مئی کو لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی ہے اور لوگوں کو ٹہلنے اور ورزش کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے ہی دن سڑکوں پر لوگوں کا رش دکھائی دیا۔ اسپین میں فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ محدود پیمانے پر اور سخت حفاظتی اقدامات کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایران میں کورونا کا زور ٹوٹ گیا کی سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر صحت ایرج نے کل رات ملک میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایران میں کورونا کے عروج کے دنوں کا اگر آج سے موازنہ کیا جائے تو ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد 75%، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 70% اور ICU میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں 45% کی کمی آئی ہے۔ صفحے کی ایک اہم خبر پاکستان سے متعلق ہے، جس کی سرخی ہے، پاکستانی سپریم کورٹ میں کورونا وائرس پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سماعت شروع کی۔ پیر کے روز چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی والی 5 رکنی بینچ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، انا اور ضد سے حکومتی معاملات نہیں چلتے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صوبی اور وفاق کے درمیان ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا نے کہا کہ ہم سیلاب اور زلزلے سے نکل آئے ہیں اور اس مسئلے سے بھی نکل آئیں گے، لیکن مسئلہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا متکبرانہ رویہ ہے۔ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں باہمی تعاون پیدا کیا جائے۔ اہم خبروں کے علاوہ صفحے پر شاید دوسری سرخیاں اس طرح ہیں، برطانیہ میں ہلاکتیں اٹلی سے زیادہ، یورپ کا سب سے زیادہ اموات والا ملک بن گیا، شام پر اسرائیل کا حملہ ناکام، عراق میں دہشت گردانہ حملہ ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک۔ ریاستی صفحے پر شائع اہم خبر کورونا مریض سے متعلق ہے۔ خبر میں سرخی اس طرح ہے، کیسر باغ علاقے میں 5 لوگوں میں کورونا کی تصدیق۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے باوجود راجدھانی لکھنؤ میں کورونا معاملے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ کیسر باغ تھانہ حلقے میں آج 2 الگ الگ جگہوں کے 5 لوگوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ACP کیسر باغ IP سنگھ نے بتایا کہ 3 دن پہلے کورونا کے 3 مریض ملنے کے بعد سبزی منڈی کو لاک کر دیا گیا تھا، وہاں سے کئی دیگر لوگوں کے نمونے محکمہ صحت کو بھیج دیے گئے تھے۔ آج آئی نمونوں کی رپورٹ میں 4 لوگ مزید کورونا مثبت پائے گئے ہیں، جبکہ خنداری بازار جمبور خانہ کے ایک شخص میں بھی آج کورونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مریض ملنے کے بعد پہلے سے ہاٹ اسپاٹ نافذ محلوں میں الرٹ سخت کر دیا گیا ہے، لاک علاقوں میں دوبارہ سینیٹائزیشن کا کام بھی کرایا جا رہا ہے۔ سرخی شیعہ سماج کا تاریخی فیصلہ، نہیں اٹھے گا قدیم تابوت کا جلوس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے،
मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर हर साल 21 रमज़ान को लखनऊ में शिया फ़िरक़े की जानिब से निकाला जाने वाला ताबूत का जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा। कोरोना के खात्मे के लिए नाफिज लॉकडाउन के बाद इंतज़ामिया की जानिब से शिया समाज से ये अपील की गई थी कि इस बार आप ना ही जुलूस निकालें और ना ही ताबूत सजाएं। समाज और मुल्क के मफाद को देखते हुए इस अपील को शिया समाज ने कबूल कर लिया और तारीखी फैसला लिया कि इस बार सुबह निकाला जाने वाला गिलीम के ताबूत समेत हज़रत अली के ताबूत का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। वाज़ेह रहे ये जुलूस हसन मिर्ज़ा के ताबूत के नाम से मशहूर है। तफसील के मुताबिक सादतगंज थाना हलके के 19 साला मुजस्समा साज नौजवान की लाश मड़ियाओं थाना हलके में घीला ब्रिज के पास गोमती नदी में तैरती हुई पाई गई। लाश को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों को जब मौत का पता चला तो उनके महल्ले में कोहराम मच गया। हालांकि लोगों ने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। काबिल गौर बात यह है कि जिस नौजवान की लाश मिली है वो तैरना नहीं जानता था। ऐसे में वो नदी में गिर गया या फिर उसे धकेल दिया, ये राज अभी भी बना हुआ है। 1300 मुहाजिर मजदूर स्पेशल ट्रेन से पहुंचे लखनऊ की खबर भी इस सफ़े पर नुमाया है। अखबार लिखता है, रियासत महाराष्ट्र में फंसे मजदूर आज ट्रेन से लखनऊ पहुंच गए, जहां उनको सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए ट्रेन से बाहर उतारा गया। लाइन लगाकर थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन सभी को अपने अपने अजला की तरफ जाने वाली बसों में बैठा दिया गया। रियासती सफ़े की आखिरी खबर अजय कुमार लल्लू के बयान पर मुश्तमिल है। अखबार लिखता है कि रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर अजय कुमार लल्लू ने शराब फरोख्त को मुहलिक बताते हुए दोबारा इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। अजय ने सख्त एतराज करते हुए कहा कि इससे वबा का खतरा बढ़ जाएगा। योगी हुकूमत को चाहिए कि पसमानदा तबकों के लिए राहती स्कीमों का ऐलान करे, ना कि शराब फरोख्त पर से पाबंदी हटाकर माहौल को और ख़राब करे। शराब फरोख्त से मुताल्लिक एक और ख़बर को अवधनामा ने इसी सफ़े पर जगह दी है, जिसके मुताबिक इलाहाबाद के वकला ने शराब की दुकानें खुलने पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनका मानना है कि इससे मूजी मरज का खतरा बढ़ जाने का खौफ है। इन खबरों के अलावा निजी अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी खिदमात जल्द, मुहाजिर मजदूरों से किराया वसूल करना मायूस कुन मायावती और दारुल उलूम देवबंद में एक अहम मीटिंग जिसमें मौजूदा हालात के पेश नज़र इस साल सालाना इम्तिहान और दाखिला इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है की खबरों को भी अखबार ने नुमाया तौर पर शाये किया है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक हेल्पलाइन के तहत पूछे जाने वाले शरई सवालात और जवाबात भी इसी सफ़े पर मौजूद हैं। अवधनामा के सफ़े 4 और 5 और 6 पर शाये मज़ामीन का तारुफ इसी वीडियो के आइंदा हिस्से में आएगा। अपना वतन सफ़े पर पहली सुर्खी है, ताख़ीर से अस्पताल जाने में कोविड मामले खतरनाक हो सकते हैं। नई दिल्ली की इस खबर के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन कोविड-19 के 90 से 95% मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि ऐसे मरीज काफी ताख़ीर के बाद अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे ये वायरस हलाकत खेज साबित होता है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों का ताख़ीर से सामने आने से उनका केस बिगड़ जाता है। खबर के मुताबिक सिर्फ 15% मामलों में तिब्बी सपोर्ट और ऑक्सीजन और सिर्फ 5% मामलों में आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। सफ़े की दूसरी सुर्खी है, बीजेपी राशन की तकसीम में बदउनवानी कर रही है। खबर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने आज कहा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए भेजे जा रहे राशन को बीजेपी दफ्तर वसूल कर रही है। पार्थू चटर्जी ने इल्जाम आयद किया कि कोरोना वायरस के बहरान में बीजेपी बंगाल हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में राशन की तकसीम में बदउनवानी और गड़बड़ी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं और चंद दिन कबल मुर्शिदाबाद समेत दीगर इलाकों में नाराज लोगों ने राशन डीलरों के घरों पर हमला कर दिया। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग राशन लूट रहे हैं और उसकी वजह से मुस्तहिक अफराद तक राशन नहीं पहुंच रहा है। आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना से मुतासिर। खबर के मुताबिक हिंदुस्तान तिब्बत सरहद पुलिस के 45 अहलकारों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जिनमें से 2 को सफदरजंग अस्पताल में, 41 को ग्रेटर नोएडा में और 2 को एम्स में दाखिल कराया गया है। आईटीबीपी के मुताबिक अब तक उसके 45 अहलकारों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। नई दिल्ली में इंस्टाग्राम पर नाज़िमा तबसरे के सिलसिले में 10 लोगों की शिनाख्त और बंगाल से दूसरी रियासतों के वर्करों को जल्दी ही रवाना किए जाने की खबरें भी सफ़ा 7 पर मौजूद हैं। अलावा अजीज दीगर सुर्खियां हैं, कोरोना के चक्कर में हुकूमत कश्मीर जंग को भूल गई शिवसेना और वंदे भारत मिशन की तैयारियां मुकम्मल होने की खबरें भी काबिल तवज्जो हैं। अखबार अवधनामा के सफ़ा नंबर 9 की अहम खबरें इस तरह हैं। गलाजत के अंबार पहचान बने हैं हमारे स्मार्ट शहर की। सहारनपुर कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भी हमारा शहर गंदगी और गलाजत का मरकज़ बना हुआ है। माह रमज़ान में कहीं कोई सफाई नहीं है। सड़कों पर कुत्तों की बहुतात के साथ साथ गंदगी के भी अंबार हर महल्ले में साफ नज़र आ रहे हैं। सैनिटाइजर्स तो दूर, यहाँ पीने का शफाफ पानी भी आवाम को मैसर नहीं है। जहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के बरसरे इक़्तिदार आ जाने के बाद
यानी मई 2017 से सहारनपुर के बेशतर इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह गए हैं। साबिक कांग्रेसी लीडर अनुग्रह सिंह ने तकसीम की राहती अशिया। प्रयागराज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन शहर शुमाली से 3 बार मेंबर असेंबली रहे अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया कि आज हुकूमत का बंदोबस्त इतना अच्छा नहीं रहा कि सभी तक राशन पहुंच सके। जो लाइन लगाकर राशन लेते हैं उनको तो कहीं से मिल जाता है, तमाम ऐसे लोग हैं जो शर्म से नहीं जा पाते। लॉकडाउन की हिमायत करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में लेने में मजबूर रही है। नन्हे रोजादार 4 साला फिदक जहरा नजफी बिनते मौलाना मोहम्मद हैदर घोसी जिला मऊ ने आज रखा पहला रोजा। 3 साला मोहम्मद जरी अब्बास इब्न शमशाद हुसैन कोपागंजी ने आज रखा पहला रोजा। यूपी में आने या जाने के लिए अवामी समाअत पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन। डीएम लखीमपुर खीरी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुल्क में लॉकडाउन नाफिज होने से उत्तर प्रदेश सूबे के दीगर रियासतों में तातील मुख्तलिफ कामगार मजदूर कारोबारी जेर तालीम तलबा व तलबात ज़ायरीन सयाह वगैरह और इसी तरह के दीगर रियासतों के लोग जो यूपी में हैं और उनके जरिए अपने सूबों में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की गई है के सिलसिले में हुकूमत यूपी के जरिए तफसीली गाइडलाइन जारी किए गए हैं। शराब के ठेके खुल सकते हैं तो बैंक एटीएम क्यों नहीं? देवबंद इंतजामिया जब शराब के ठेके खोल सकती है तो बैंक एटीएम क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? लोग जब भूख से मरना शुरू हो जाएंगे क्या तभी हुकूमत व इंतजामिया गफलत की नींद से बेदार होगी? ये कहना है शहर के उन लोगों का जिनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने से कासिर हैं। महकमा सेहत निजी और सरकारी शोबे के डॉक्टरों के जरिए जिले में टेली मवासलात के जरिए तिबी सहूलियात मुहैया कर रहा है। डीएम आजमगढ़ तहसील सदर में कायम कम्युनिटी किचन का मुआयना जिला मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद ने किया। मुआयने के दौरान ये पता चला कि कम्युनिटी किचन के लिए मुनासिब जगह की अदम मौजूदगी में जिली मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार सदर को हिदायत की कि वो तहसील के अहाते में मुनासिब जगह के मुताबिक कम्युनिटी किचन कायम कराएं। इसी के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार सदर को हिदायत की कम्युनिटी किचन में खाना बनाने वाले मुलाजिमीन को टोपी, मास्क और ग्लव्स वगैरह का बंदोबस्त करा दें। जहेज कत्ल मामले में खातून समेत मुलजिम गिरफ्तार। बहराइच 5 मई आज जिला के थाना रामगांव पुलिस ने जहेज के लिए कत्ल किए जाने के सिलसिले में खातून समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में सिपाही शदीद जख्मी, अस्पताल में दाखिल। सफा आखिर पर पहली खबर के रूप में चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत अवनीश कुमार अवस्थी का बयान है, जिसकी सुर्खी है रियासत में अब तक तकरीबन 123 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदारी। इस खबर की ज़ैली खबर में अमित मोहन का बयान है, जिसकी सुर्खी है रियासत में अब तक 1,01,630 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल 300 पोल टेस्ट के तवस्सुत से 1440 सैंपल किए गए टेस्ट। वजीर आला ने हिंदवाड़ा में शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। अखबार की आखिरी सफ़े की दूसरी सुर्खी है, जिसमें बताया गया है कि वजीर आला उत्तर प्रदेश ने जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में दहशतगर्दों से तसादुम में सीआरपीएफ के शहीद जवान अश्विनी कुमार यादव, संतोष कुमार और चंद्रशेखर की शुजाअत और बहादुरी को सलाम करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करने वाले इन शहीदों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। 50 रुपए फीकस सदका फित्र अदा करें, दारुल इफ्ता फिरंगी महल का ऐलान। इस खबर में दारुल इफ्ता वल क़ज़ा फिरंगी महल के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ व काज़ी शहर लखनऊ ने इमसाल सदक़े ईद उल फित्र की मिक़दार 50 रुपये तय करते हुए तमाम साहिब निसाब मुसलमानों से अपील की है कि वो सदक़े फित्र अदा करने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें और माह रमज़ान ही में नादारों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दें ताकि वो भी ईद की तैयारी कर सकें। जमहूरियत में आवाम की आवाज़ उठाना बीजेपी हुकूमत को गवारा नहीं, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हालात बेकाबू, अखिलेश यादव। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि जमहूरियत में आवाम की आवाज़ उठाना बीजेपी हुकूमत को गवारा नहीं, उसको इसमें अपना तख्त डोलने का खतरा लगने लगता है। जमहूरी अक़दार और उसूलों को बालाए ताक रखा जा रहा है। अपोजिशन से तो क्या, वजीर आला को अपने रुकन असेंबली से भी डर लगने लगा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने से गुरेज क्यों। इसके अलावा सफा आखिर पर कद्दावर लीडर अजीमुल हक पहलवान के इंतकाल पर अखिलेश यादव का इजहार रंजोगम। लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। पुरानी दुश्मनी को लेकर 2 फरीकों में जबरदस्त लड़ाई और शराब बंदी संघर्ष समिति के सदर मुर्तजा अली का बयान भी सफा आखिर की दूसरी सुर्खियां हैं। नीज शहर निगारा में नन्हे रोजेदारों की तस्वीर भी इसी सफ़े की जीनत है। नाज़रीन किराम, 20 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।
Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. नाज़रीन आदाब। 12 रमज़ान मुबारक मुताबिक 6 मई 2020 के रोजनामा अवधनामा के सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। इदारती सफ़े पर पहला मजमून मारूफ फिक्शन निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का है, जिसका उन्वान है मुसलमान टारगेट। मजमून निगार कोरोना वायरस के तनाज़ुर में वायरस की तारीख का तज्ज़िया करते हुए लिखता है कि हिंदुस्तानी सियासत का जायजा लेते हैं तो ये सारे वायरस एक तरफ, फिरका वारिद वायरस का जो पहलू नजर आता है वो हमें मुसलसल एक ऐसी खौफनाक वादी या खाई की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है जहां से बचने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद अंधी, गूंगी, बहरी नस्लें पैदा हुई थी। नफरत के वायरस ने हमें अंधा भी कर दिया है और हमसे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें भी छीन ली। इदारती सफ़े पर ही डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम अपने मजमून बउनवान अमन और सलामती के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी में लिखते हैं कि मॉब लिंचिंग के सिलसिलावार वाकयात इसी मिशन का हिस्सा थे और हालिया दिनों में कोरोना वायरस ने दस्तूर की तरमीम के लिए मौका फराहम कर दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना एक मर्ज है, इससे निपटने और उस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत में कोरोना को एक क्राइम की शक्ल दे दी गई और इसका मरकज मुसलमानों को बना दिया गया। हम सब मिलकर ये अहद करें कि हिंदुस्तान में उस आईन और दस्तूर की रूह को बहाल करना है जिसका हमारे मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था और भीमराव अंबेडकर की टीम ने जिसे तैयार किया था। मोहम्मद उवैस संभली अपने मजमून बउनवान नफरत की बुनियादों पर मोहब्बत के महल की तामीर नामुमकिन में लिखते हैं कि मुल्क कोरोना से लड़ने में मसरूफ है, दिल्ली पुलिस भी मसरूफ है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन में नहीं बल्कि एक बड़ी इंक्वायरी करने में। दरअसल वो इंक्वायरी कर नहीं रही है बल्कि कुछ बातें हैं जिन्हें वजीर दाखिला पार्लियामेंट में पहले ही पेश कर चुके हैं। वजीर दाखिला की उन बातों को सच साबित करने के लिए सबूत और शवाहिद ढूंढे जा रहे हैं। दिल्ली दंगों के बारे में FIR हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी नहीं जिन्होंने खुलकर पब्लिक के जज्बात को भड़काने वाले बयान दिए। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और जो गुंडे ट्रैक्टर ट्राली भर कर दिल्ली फसाद के लिए लाए गए उनके खिलाफ भी नहीं बल्कि जो लोग CAA के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे, चुन चुन कर उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा सफ़े के ज़ैली हिस्से में वक़ार नदवी संदेलवी और मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन पुणे के मुरासले भी मौजूद हैं। अदबी सफ़े पर प्रोफेसर सालेहा हुसैन की कहानी लॉकडाउन के शोबे पहली सुर्खी में है, जिसमें लॉकडाउन के तनाजुर में एक खूबसूरत कहानी का ताना बाना बुना गया है और दिखाया गया है कि किस तरह इंसानी जिंदगी पर लॉकडाउन के मनफी और मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज की मुरतब करदा किताब मज़ामीन डॉक्टर शीला राज पर प्रोफेसर मोहम्मद अताउल्लाह का तबसरा है, जिसमें तबसरा निगार ने किताब के मशमूलात का जिक्र करते हुए चीदा चीदा इक़्तिबासात भी पेश किए हैं, लेकिन अपनी कोई राय देने से जरूरत से ज्यादा एहतराज बरता है और किताब की इशाअत पर मुरत्तिब को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा ज़ैद लतीफ की मुख्तसर कहानी माँ की आगोश भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नौजवान कलमकार कालम में शम्सुल आरिफीन शाहिद की कहानी राहुल की मुहिम भी अदबी सफ़े की जीनत। रमजान मुबारक के खुसूसी सफ़े पर मोहम्मद आरिफ रजा नोमानी का मजमून रोजा व रमजान में इखलास की बरकतें पहले मजमून की शक्ल में है, जिसमें मजमून निगार लिखता है कि मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो अक्सर और बेशतर आमाल खैर सिर्फ नामनमूद के लिए किए जाते हैं। इसकी मिसाल यह है कि अब किसी भी किस्म की इमदाद मुस्तहक तक पहुंचाने के साथ साथ उस वक्त की तस्वीर भी महफूज की जाती है और सोशल मीडिया पर शेयर भी की जाती है ताकि दुनिया हमारी सखावत को देखे। सोचने की बात है कि लेने वाले के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो खुद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखता या सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर का हवाला देकर लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। ऐसों की दादोदहिश सखावत नहीं है। एक गरीब इंसान के लिए रमजान के कुछ खर्च का आपने इंतजाम कर दिया, उसे आपकी तस्वीर कशी और उसके वायरल होने ने शर्मिंदा कर दिया। लिहाजा ऐसा करने से जरूर बचें जिससे किसी की इज्जत नफ्स मजरूह होती हो। दूसरा मजमून रईस सिद्दीकी का है, जिसका उन्वान है मेरा पहला रोजा, उस दिन मिला जिंदगी का अहम तरीन सबक। इसमें मजमून निगार ने बचपन में अपने पहले रोजे का अहवाल यूं नकल किया है कि यह एक अदबी मजमून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तीसरा मजमून मॉरिशस की आबिनाज जान अली का है, जिसका उन्वान है रमजान में लॉकडाउन का सामना मजबूत जहन से किया जाए। मजमून निगार लिखती है कि एक मुसलमान का ईमान है कि रात और दिन का तयन करने वाला खुदा है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे वक्त में अपनी सोच को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग अपना जहन मजबूत रखते हैं वो नया इल्म हासिल करने में मसरूफ रहते हैं।
उन्हें मालूम है कि तरक्की में वक्त लगता है, वो मदद मांगते हैं, वो दूसरों से मुतासिर होकर अपने काम को बेहतर बनाते हैं, हिम्मत जुटाते हुए दूसरों की राय से सीखते हैं, वो नाकामी से नहीं डरते, उन्हें नए चैलेंजेस पसंद हैं, वो गलतियों का नया मौका मानते हैं और उस वक्त तक कोशिश करते हैं कि जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। इसी सफ़े पर माह रमजान कुरान मजीद की सालगिरह के उन्वान से आखिरी मजमून हाफिज अब्दुल सलाम नदवी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 में फरमाया है कि रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। ये अंदाज बयान जाहिर कर रहा है कि रमजान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस एतबार से हम बिला हिचकिचाहट ये कह सकते हैं कि रमजान कुरान की सालगिरह मनाने का महीना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाया है और आखिरी साल आपने 2 बार दौर फरमाया। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी, एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। क्षेत्रीय भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज व बाढ़ खंड कार्यालय के पूरनपुर में पुनः स्थापना की जाएगी। कोरोना वायरस से शैक्षिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित होने वाले छात्रों के लिए एनसीईआरटी ने देश भर में काउंसलर नियुक्त किए हैं, जो छात्रों को निःशुल्क परामर्श देंगे। एनसीईआरटी ने नॉर्थ जोन में 56 काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। अलीगढ़ की डॉक्टर काशिफा खान को भी काउंसलर बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व कद्दावर नेता अजीमुल हक पहलवान का निधन। बहराइच में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बाल मित्र थाने का किया उद्घाटन। थाने में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होगा संरक्षण। बीबीपुर गांव में बिजली चोरी कर चलाई जा रही थी आटा चक्की। अवर अभियंता राहुल बंसल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोरोना संकट काल में दारुल उलूम देवबंद ने ताजा और अहम फतवा दिया है। फतवे में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंक से अपनी जमा पर मिले ब्याज से तंगहाल और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। दारुल उलूम देवबंद की वार्षिक परीक्षाएं भी निरस्त। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पर छात्र होंगे प्रोन्नत। नवीन शिक्षण सत्र के लिए भी नहीं होंगी प्रवेश परीक्षाएं। जौनपुर में रात के अंधेरे में गाफिया ग्रुप के एमडी मोहम्मद अजहर रोजेदारों को रोजा रहने के लिए सहरी का इंतजाम कराने में जुटे हैं। अजहर गरीब रोजेदारों के घरों पर रात के अंधेरे में सहरी किट लेकर पहुंच रहे हैं ताकि कोई भी रोजेदार बिना सहरी के रोजा न रहने पाए। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते 25 संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। 1400 लोगों को होम क्वारंटाइन करते हुए 25 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं 79 लोगों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। लखीमपुर खीरी में मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी। सुबह से ही आसमान में बादल छा गए। गरीब अन्नदाता एवं बागवानों को झकझोर कर रख दिया भारी वर्षा और ओलावृष्टि ने। कोरोना संक्रमण से निपट रहे गोरखपुर कोविड-19 टीम के प्रभारी सीओ गोरखनाथ, सीओ क्राइम प्रवीण सिंह के नेतृत्व में गोरखनाथ और शाहपुर पुलिस द्वारा लोगों की सुरक्षा का एहसास कराने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए रूट मार्च और पैदल गश्त किया गया। पारिवारिक कलह में महिला ने 3 बेटियों सहित की आत्महत्या। घटना को जहां मां हत्या तो puलिस आत्महत्या बता रही है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।